अच्छा, सभी भाई को वेलकम करेंगे अपने हाथों को लहराकर, जोरदार तालियों के Hi. साथ भाई को वेलकम। Howdy. I want to talk about how we know that we're saved. और आज हम कलाम में से ये सीखेंगे कि हम किस तरह से निजात याफ्ता बन सकते हैं। And it begins with our faith in Jesus Christ. और ये हमारे ईमान के वसीला से जो हमारा यीशु पर ईमान है उससे शुरू होता है। There are four things in a believer's life. एक ईमानदार की जिंदगी में 4 चीजें होती हैं। A confession with our mouth that Jesus is Lord. वो अपने मुंह से इकरार करता है कि अब- यीशु ही खुदावंद है। A belief in our heart that God raised him from the dead. और वो अपने दिल में ये ईमान रखता है कि यीशु को खुदा ने मुर्दों में से जिलाया। A water baptism. Yeah. और पानी का बपतिस्मा। And a baptism by the Holy Spirit. Yes. और फिर रूह कुद्दस की आग का बपतिस्मा लेता है। Let's look at 1 John chapter 5, 1 through 5. 1 John chapter 5, 1 through 5 says, Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father also loves the one born of him. This is how we know that we love God's children, when we love God and obey his commands. For this is what love of God is, to keep his commands. And his commands are not a burden, because everyone who has been born of God conquers the world. This is the victory that has conquered the world, our faith. Who is the one who conquers the world but the one who believes that Jesus is the Son of God? जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। 5 हैं तो आमीन आमीन। आमीन। Amen. So it says that everybody who believes that Jesus is the Christ, is born of God. Yes. और ये आयत हमें ये बताती है कि जो कि ये ईमान रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है, वही खुदा के बेटे बेटियों में शामिल है। So our journey with God, our relationship with God, starts with knowing that Jesus is Lord. और हमारा जो खुदा के साथ मेल मिलाप है और हमारा खुदा के साथ जो चलना है वो इसी से शुरू होता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद मान लेते हैं। Timothy, do you have anything to say? It says that when we believe in God, we overcome the world. We और have याद that रखिए victory. कि इसका मतलब यही है कि जब हम खुदा पर ईमान रखना शुरू कर देते हैं तो हम इस दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, जो इस दुनिया की बातें, उन पर हम गालिब आ जाते हैं। We have victory in Jesus Christ to overcome the world through our faith. और हम यीशु मसीह में ये फतह पाते हैं कि हम इस दुनिया की बातों पर गालिब आ जाएं, हम इन पर फतह पा जाएं, इनसे हम ऊपर होकर सोचें। आमीन। Amen. Amen. And it also says that if we love God, we keep his commands. Yes. और ये आयतें हमें ये भी बताती हैं कि अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसके हुक्मों पर भी चलते हैं। आमीन आमीन। So Amen. we can show God that we love him by obeying what he tells us to do. और जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा को दिखाते हैं कि वाकई हम तुझसे प्यार करते हैं। आमीन आमीन। So what happens if you believe that Jesus is Lord? Let's look at Romans chapter 10, 8 through 13. और क्या होता है जब आप ये मान लेते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, तो फिर भला क्या आता है वो हम देखेंगे रोमियों के 7 में।
Romans chapter 10, 8 through 13 says, "This is the message of faith that we proclaim. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. One believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. For the scripture says, everyone who believes on him will not be put to shame, since there is no distinction between Jew and Greek, because the same Lord of all richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." बल्कि क्या कहती है कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावन होने का इकरार करे तो अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। आमीन। आमीन। Amen. Amen. So there's two things. There's two things that are in a believer's life. और एक दो चीजें ईमानदार हैं की जो जिंदगी में हम दो चीजें यहाँ पर The scripture says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू अपने मुंह से ये इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है and believe in your heart that God raised him from the dead, और अपने दिल में ये यकीन रखे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, then you will be saved. My God, my God. Man, this Jesus. हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार था। Timothy, do you have anything to say? आप इस तरह की आवाज ना कह रहे करो। It says that there's no difference between the Greek and the Jew and the Greek. So God loves us all the same. और खुदा सभी से यकसा मोहब्बत रखता है। खुदा के नजदीक कोई भी गोरा नहीं, कोई भी काला नहीं, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी अमीर नहीं, कोई भी गरीब नहीं। खुदा सभी से एक जैसी मोहब्बत रखता है। आमीन। हालेलुया। He saves us all just the same, regardless of where you come from. और वो सभी जैसे सभी को बचाता है वैसे ही हमें बचाता है। वो ये नहीं देखता कि हम कहाँ से आए हैं, किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। And anytime we need him, we just call upon his name, and the Bible says we shall be saved. और किसी भी वक्त जब भी कभी हमें जरूरत हो हम उसके नाम को पुकारें तो खुदा का कलाम बताता है कि वो हमें बचाने को आन मौजूद होता है। आमीन। आमीन। This is the very foundation of our faith. ये हमारे ईमान की बुनियाद है। Amen. Amen. Let's look at 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब verses 5 through 10. 1 John chapter 1, 5 through 10. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, and there is absolutely no darkness in him. If we say we have fellowship with him and yet walk in darkness, we are lying and are not practicing the truth. If we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 5वीं से 10वीं आयत तक। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमने सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। आमीन। आमीन। का बड़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस।
Amen. So the scripture says that if we have fellowship with him, we need to practice the truth. और Yes. कलाम यहाँ पर हमें ये सिखा रहा है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप है तो हमें अमली तौर पर भी इसका इजहार करना है। हम हमारे बोलने चलने उठने फिरने बैठने से बातचीत करने से हमारे कामों से पता चलना चाहिए कि हम खुदा वाले लोग हैं। आमीन। Amen. Amen. So we need to leave the idols of our life behind us, and we need to start practicing what God says is good. और हमें वो सब कुछ हमारी जिंदगी में से निकाल देना है, पीछे छोड़ देना है जो हमारे लिए ठोकर का बायस बनता है, जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। हमें ये कोशिश करते रहना है कि हमने खुदा के साथ चलना है। आमीन। आमीन। The Bible says if we walk in darkness, we are lying and not practicing the truth. That's right. और कलाम बता रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम तो खुदा से डरने वाले लोग और खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, तो फिर हम बुरी बातों पर तवज्जो क्यों देते हैं, जहाँ हमसे बुरे काम क्यों होते हैं? But इसका मतलब यह है कि हम झूठ बोलते हैं कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं। if we walk in the light as Jesus is in the light, we have fellowship with him. और याद रखें, अगर हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप है, हम खुदा के साथ चल रहे हैं, तो हमें भी यीशु की तरह नूर में चलना है। हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं होना चाहिए। And then the blood of Jesus cleanses us from all sin. और फिर खुदा उनका लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। Timothy, do you have anything to say? If we confess our sins, the Lord is so faithful and loving and kind to forgive us of our sins. अगर हम अपने गुनाहों का खुदा के हुजूर में इकरार करते हैं तो खुदा बड़ा मेहरबान है, वो बहुत रहम करने वाला है, वो हमसे बहुत मोहब्बत रखता है, वो ये कुदरत रखता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। लेकिन पहले हमें उसके हुजूर में अपने गुनाहों का इकरार करना लाज़मी है। आमीन। आमीन। All of us have sinned and come short of God's glory. हम सभी जो है, हम सभी को मखसूस किया गया और बुलाया गया है कि हम खुदा के जलाल में शामिल हों। आमीन। आमीन। Amen. And if we say we don't sin and we have no sin, it's like calling Jesus a liar. और अगर हम ये कहें कि हम में गुनाह नहीं है, हम गुनाह नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को झूठा ठहराते हैं, उसे झूठा कहते हैं। Amen. Amen. So let's look at Ephesians chapter 1. और अब हम देखेंगे क्यों उसका पहला बाब। Ephesians chapter 1, 13 through 14. Ephesians chapter 1, 13 through 14. In him you were also sealed with the promised Holy Spirit when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and when you believed. The Holy Spirit is the down payment of our inheritance until the redemption of the possession to the praise of his glory. और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौजूद रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की बखलुसी के लिए हमारे मिरास का बेगाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। आमीन। Amen. So when we believe that Jesus has been raised from the dead, और जब हम ये मान रखते हैं कि हम ये मुर्दों में से जीता, and we Yes, confess Lord. with our mouth that he is Lord, Yes, और Lord. हम अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि वो हमारा खुदावंद है, God gives us a gift. तो खुदा हमें एक तोहफा देता है, The gift's name is the Holy Spirit. और वो तोहफा ये है कि आप पाक रूह कुद्दस से भर जाते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। Yes, Lord. Now the Holy Spirit is the evidence that we believed what we believed was true. और जब आप पाक रूह से भर जाते हैं तो ये इस बात की गवाही है कि आप सच्चे ईमानदार हैं। आमीन। आमीन। Because he comes to live inside of us. Yes.
क्योंकि पाक रूल कुदस इसीलिए नाज़िल होता है कि वो हमारे अंदर रहे। And he grows us up in the knowledge of the Lord. और जब पाक रूह हम में बसता है तो फिर ही हम खुदा के अरफान में, खुदा के इल्म में, खुदा में बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। आमीन। To give us the power to walk away from sin. और खुदा का पाक रूह ही हमें यह ताकत देता है कि हम गुनाहों से दूर हो जाएं। And to mature us in our knowledge of God. Yes. और खुदा का रूह ही हमें खुदा के इल्म में समझदार बनाता है। The Holy Spirit is our down payment. और खुदा का जो पाक रूह है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। He is the evidence that God is real. और ये इस बात का गवाह है कि खुदा वाकई ही मौजूद है। Timothy, you have anything? Yes. The Spirit of the Lord is also such a great comforter in our time. और याद रखिए खुदा का पाक रूह जब आप में बसता है तो वो आपकी उम्र भर के लिए आपका एक बहुत बड़ा मददगार है। आमीन। Whenever we go through certain things in life, the Spirit of the Lord comforts us and helps us. और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं या जिंदगी में अगर अच्छे बुरे हालात देखते हैं तो हर तरह के हालात में खुदा का पाक रूह हमें आराम देता है, हमारी मदद करता है। आमीन। आमीन। It leads and guides us in all truth. और अगर हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा सारा सच है। Amen. Amen. All right, let's look at 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब। verse 13. 1 John chapter 4, verse 13. This is how we know that we remain in him and he in us. He has given us of his Spirit. क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। आमीन। 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 Let's look at 1 John chapter 2, 1 through 6. और इसी 1 John chapter 2, 1 through 6. My little children, I am writing you these things so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He himself is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for those of the whole world. This is how we know that we know him, if we keep his commands. The one who says, I have come to know him, and yet doesn't keep his commands, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly in him the love of God is made complete. And this is how we know that we are in him. The one who says he remains in him should walk just as he walked. अये मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो Praise बाप के हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं इसे जान गया हूँ, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे और उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत शामिल हो गई, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आमीन। आमीन। Amen. So it says that if we have come to know that Jesus is Lord, और अगर हम ये जान लेते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदावंद है, we are going to obey his commandments. Yes. तो हम उसके हुक्मों को भी मानना शुरू कर देते हैं। This is our work. This is our job. यही हमारा काम है जो हमने खुदा के लिए करना है। We're not going to be justified by working by anything that we do. हम किसी भी काम की वजह से जो हम करते हैं और किसी बात की वजह से हमारी पहचान नहीं होगी, But it is our responsibility to obey God's commandments. Yes, Lord. लेकिन जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो इससे पता चलेगा हमारा कि हम खुदा वाले लोग हैं। हमारा ये फर्ज है, हमारी ये ड्यूटी है। If we say that we know him but don't keep his commandments, we are lying. और अगर हम कहें कि हम
खुदा के हुक्मों पर चलते हैं लेकिन हम उन हुक्मों पर चलते ना हो तो इसका मतलब है हम झूठ बोलते हैं यानी कि एक और बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं It says, the one who says he remains in him should walk just as he walked. Yes. We should walk just और as Jesus walked. और अगर कोई ये कहता है कि खुदा उसमें बसता है तो उसका चलना फिरना भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा खुदावंद का था Timothy? You know, it says Jesus doesn't want us at any point to sin. खुदावंद बिल्कुल कोई भी ये नहीं- नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह का गुनाह हम में पाया जाए But if we do, we have an advocate with the Father. We have a relationship with Jesus, and we have salvation that will cover our sins. और अगर वाकई हम ऐसा करते हैं कि हमें किसी तरह का गुनाह ना पाया जाए तो हमारा खुदा के साथ तल्लुक भी है खुदा यीशु मसीह के साथ तल्लुक भी है पाक रूह भी हमें बसता है और हम निजात याफ्ता लोग हैं आमीन आमीन Amen. Amen. Let's look Praise at God. Romans chapter 5. Glory to रोमियो God. 5वां बाब Glory to God. Glory to 1 God. through 2. Romans chapter 5, 1 through 2 says, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have also obtained access through him by faith into this grace in which we stand, and we boast in the hope of the glory of God. बस जब हम ईमान से रास्त Glory to बात God. ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस पर फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें आमीन Let's look at Acts chapter 2, 38 through 39. Acts chapter 2, 38 through 39 says, Peter replied, Repent and be baptized, each of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children, and for all those who are far off, as many as the Lord our God will call. पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक पर गुनाह की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे इसलिए कि वो ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा आमीन आमीन Amen. So, water baptism is an important part of our salvation. तो याद रखिए कि पानी का बपतिस्मा हमारी निजात के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है It is obedience to God's word and a demonstration of our faith. Yes. और ये खुदा की ताबेदारी करना और हमारे ईमान में मजबूती का बायस बनता है It should be something that we take part of. और ये कुछ ऐसा करना है कि जो हमें अलग कर देता है But repentance, it says repent. और तौबा करना हमारी जो तौबा है Repent and be baptized, Yes. और पहले हमने तौबा करनी है फिर बपतिस्मा लेना है and you will receive the gift of the Holy Spirit. और फिर हम पाक रूह नाम में पाते हैं And we spoke about the Holy Spirit. He is our guarantee. Yes. और हम रूहुल कुद्दस के बारे में बातचीत कर चुके हैं कि वही हमारी गारंटी है This promise is for you and your children. ये जो वादा है वो आपके लिए और आपके बच्चों सभी के लिए है। And as many as the Lord will call. Amen. और बहुत सारे हैं जिन्हें खुदा बुलाना चाहता Timothy? है आगे Being baptized by water is a very spiritual thing. It is removing the outward sin and being cleansed by the water and the blood of Jesus. और पानी का बपतिस्मा लेना एक बहुत जरूरी चीज है इससे हमारे सभी गुनाह पानी और यीशु के खून के वसीला से धुल जाते हैं And then he gives us the Holy Ghost, which is our seal and our helper. और
ये खुदा का पाक रूही है जो हमारी हिफाजत भी है और हमारा मददगार। Glory to God. Let's look at what God's going to do for us in Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, 25 through 27. Ezekiel chapter 36, 25 through 27 says, I will also sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all of your impurities and all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. और यहाँ खुदा के कलाम में ये लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब गुनाहों से पाक करूंगा, और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अता करूंगा, अनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम में से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे हकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन आमीन। Amen. So the Lord will sprinkle clean water on us. He will cleanse us. और खुदा चाहता है कि वो हम पर साफ पानी को छिड़के हमारे ऊपर डाले, ताकि हमारे जो गुनाह हैं वो धुल जाए। He will give us a new heart and a new spirit. और वो चाहता है कि हमें एक नया दिल और नई रूह बख्शे। And he will cause us to walk in his statutes. Yes. और वो चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में चलें। So you can see that obeying God is a key part of our salvation. और याद रखिए, खुदा के हुक्मों को मानना एक ऐसा अमल है कि जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं। आमीन आमीन। We must leave our sins. We must not practice them anymore. हमें अपने गुनाहों को लाजमी छोड़ना है, हमें बार-बार उन्हें दोहराना नहीं है। We have to walk in the light. हमें नूर में चलने की जरूरत है। We have to practice what is true. Yes. हमें बार-बार वो करना है कि जो सच है। आमीन आमीन। And this is going to be difficult. It's not going to be easy. ये यकीनन बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं होता। You have to force yourself to do what is right. Yeah. लेकिन फिर भी आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बार-बार ये कहना है कि मैंने नेकी की तरफ ही जाना है। आमीन आमीन। Timothy? When he gives us his spirit, it will tell us what is right, the difference between what is right and what's wrong. और जब वो अपना पाक रूह हमें दे देता है, तो उससे हमें पता चलता है कि गलत क्या है और सही क्या है, हक क्या है और बुराई क्या है। Because his spirit will deal with us whenever we start to do something wrong. और जब कभी हमसे कोई गलत काम होने लगता है, तो खुदा का रूह हमें रोक देता है, वो हमें बताता है कि तुम ये गलत करने जा रहे हो। We will feel conviction. और हम भी उसका जो हमें रोकना है, उसे फिर हम महसूस करते हैं। Amen. Let's look at 2 Corinthians chapter 1, 21 and 22. 2 Corinthians chapter 1, 21 through 22 says, Now it is God who strengthens us together with you in Christ, and who has anointed us. He has also put his seal on us, and given us the Spirit in our hearts as a down payment. और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसा किया, वो खुदा है, जिसने हम पर मोहर की थी और बेफायदा में रूह को हमारे दिलों में दिया। आमीन आमीन आमीन। Amen. Let's look at Romans chapter 8, verse 9. Romans chapter 8, verse 9 says, You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसा हुआ है।
मगर जिस ने मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन। आमीन। Amen. So back to what I was saying when I started this sermon. There are 4 things in a believer's life. और अब मैं वहां पर ही वापस जाऊंगा जब मैंने स्टार्ट में कहा था कि 4 चीजें हैं जो एक ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए। A confession that Jesus is Lord, Yes. एक तो मुंह से इकरार करना a कि belief यीशु that ही खुदावंद है, God raised him from the dead, और ये ईमान रखना कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, a water baptism, Oh, और पानी का hallelujah. and a baptism by the Holy Spirit. और खुदा के पाक रूह का बपतिस्मा। Amen. That's what I have. Timothy, do you have anything to say to finish with? After we receive Jesus, we are no longer fleshly beings, but spiritual beings. जब हम खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो फिर हम जिस्म की ख्वाहिशात के नीचे नहीं चलते, तो बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। आमीन। Everything that we did in the past has been covered by the blood of Jesus. हमने माजी में जितने गुनाह कर लिए वो सभी खुदा यीशु मसीह के खून ने धो दिए हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Amen, you We guys. can. Amen. Praise God. I'm sorry to cut you off. I didn't mean to. No, you're fine. Well, thank you very much, everybody, for being here and listening. कहते हैं And कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। ब्रदर, they all are workers for the bricks factory and they stopped their work. They are preparing bricks, but they stopped their work to receive word of God. praise God. Praise And God. after they will again go to their work. Okay. Amen. 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 Glory to God. Amen.